Good afternoon all. Myself, Mr. Narendra Thakre from Department of Physics, Sri Shivaji Science and Arts College, Chikli, welcomes you all in the first talk of this webinar. The resource person for first talk is Dr. G.T. Lamdhade. He is currently working as Professor, Department of Physics, Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati. He has completed his BSc, MSc and PhD degree from Santa Gadge Baba Amravati University, Amravati. His total teaching experience is of 21 years for undergraduate classes and 15 years for postgraduate classes. He is currently working as PhD supervisor at Santa Gadge Baba Amravati University, Amravati. His area of research is humidity sensor, polymer, gas sensor, hybrid metal oxide polymer composites and nanocomposites. Total 3 students has awarded PhD degree under his supervision, and currently 6 students are pursuing PhD under his supervision. He also guided 7 students for MPhil and 32 students for projects in MSc. He has organized 14 seminar, conferences and symposia. He has published 3 books. He has completed 1 major project and 1 minor research project. He has published 45 research papers in reputed international journals. He also published 50 research papers, articles in seminar, conferences and symposia. He is a member of Career Counseling and Placement Cell at Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati, and he is also member of Board of Studies Physics at Santa Gadge Baba Amravati University, Amravati. So this is the brief introduction of our today's first resource person. I hope that his vast experience at undergraduate and postgraduate classes will guide you definitely in this webinar for career opportunities in physical and mathematical sciences for UG and PG students. Thank you. Hello friends, myself G.T. Lamdhade from Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati. Today we are all on the onlines, particularly for the webinar on career opportunities in physical and mathematical sciences for undergraduate and postgraduate students, organized by Department of Physics, Mathematics and the IQAC cell of Sri Shivaji Science and Arts College, Chikli, District Buldana. I congratulate to the organizer, Dr. A.M. Garode sir, Principal of Sri Shivaji Science and Arts College, Chikli, and the management of this Mahavidyalaya College, Sri Deshmukh Sahib, President of Sri Shivaji Education Society, Amravati, and I also congratulate to Department of Physics, Mathematics and the IQAC cell for organizing such type of webinar on the career opportunity in the physical and mathematical sciences, particularly for the undergraduate and postgraduate students. First of all, I announce that I am the alumni of this Sri Shivaji Science and Arts College, Chikli. I have completed my graduation from Shivaji Science College in 1996. So I pray to all my gurus at the Sri Shivaji Science College. So I also thanks to my gurus for giving me opportunity to talk with you, particularly online due to the COVID-19. We are all here the online
and today's my topic is on career scope after the BSc MSc Physics higher education job opportunities. For the simplicity, I speak in Hindi or in Marathi while my presentation. For the simplicity, career scope, when you complete your undergraduate or the postgraduate in physics, what are the scopes, what are the options in the higher education, and what are the job opportunities which are available. So today we are going to discuss my topic. Having some content, I have summarized my content, that is today's lecture mainly focus on these following points: scope of BSc Physics, higher education after BSc Physics, job roles for the BSc Physics and graduates, career option after BSc Physics, top entrance examinations for MSc and the PhD Physics courses, postgraduate courses after BSc Physics, career option after BSc Physics in the government sectors, career options after BSc Physics in private sectors, MSc courses, how many MSc courses are offered, integrated MSc and MSc Tech courses, advantages of pursuing MSc courses, career options after pursuing MSc courses, career options after MSc in private sectors, career options after MSc in government sectors, career options after MSc, study in PhD, career options after PhD, government sector career options after PhD, career scope after PhD in the other field. So today's topic, in today's talk, I have started from BSc. मैंने आज के लेक्चर में BSc से लेकर MSc और PhD तक सभी चीज़ों का वर्णन इसके वीडियो लेक्चर में किया है, जिसमें BSc करने के बाद आपको कौन से जॉब मिल सकते हैं, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, MSc के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहिए, PhD के लिए कहाँ कोर्सेज होते हैं, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन, जिसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे, इसका इम्पोर्टेंस आपके करियर में कैसा होगा, इवन BSc होने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में कहाँ जॉब्स को मिल सकते हैं, MSc के कितने सारे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, MSc के कितने टाइप्स होते हैं, MSc टेक होता है, MSc करने के कितने एडवांटेज होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं, उससे आपको कौन से करियर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, और MSc करने के बाद कौन से प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकते हैं। इवन MSc के बाद PhD भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें ना करें ये आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। PhD के बाद कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी PhD करने के बाद जॉब्स अवेलेबल होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई अदर फील्ड में भी जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं PhD करने के बाद, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा मेरे आज के वीडियो लेक्चर का ब्यौरा है, जो कि हिंदी में मैं आपसे बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम न जाए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्कोप ऑफ BSc फिजिक्स। हालांकि BSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स का अगर बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं तो स्ट्रांग बैकग्राउंड होता है, स्ट्रांग बैकग्राउंड फॉर द फर्दर स्टडीज इन द फिजिक्स कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स। मतलब फिजिक्स के जितने सारे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं तो उनका बैकग्राउंड जो होता है स्ट्रांग होता है।
जो अच्छे तालीम हासिल करता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है, उस स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इवन जब भी वो फिजिक्स का स्टूडेंट होता है तो वो ट्रेन ग्रेजुएट होता है, और जितने भी उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है तो वो एक कम्प्लीटली एक ट्रेन ग्रेजुएट्स करके बाहर निकलता है। इवन बीएससी फिजिक्स का जो स्टूडेंट है और लैब वर्क के कारण, ट्रेनिंग के कारण सभी तरफ एक्सपर्टाइज बन जाता है, और जहाँ भी जाएगा वहाँ उस वर्क प्लेस पे वो एक्सेली काम करेगा, बढ़ोतरी से काम करेगा, अच्छे तरह काम करेगा। और अगर बीएससी फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिक्स का अगर है, तो उसमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के कारण उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, साइंटिफिक टेम्पर, उसका डिस्कवरी का बारे में मेथोडोलॉजी, ये सभी चीज़ों का मानवता के लिए उसका ज़रूर उपयोग होता है। मतलब अगर बीएससी फिजिक्स का अगर स्टूडेंट है तो फिजिक्स का स्टूडेंट होने के कारण उसमें सभी चीज़ें आ जाती है कि इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, साइंटिफिक टेम्पर होता है, डिस्कवरीज के हमेशा उसका लगाव रहता है, हर चीज़ पे वो डिस्कवरी करना चाहता है। इवन बीएससी फिजिक्स का स्टूडेंट जो भी होता है वो क्रिएटिव होता है, उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में होता है, और बीएससी फिजिक्स का कोर्स जैसे वो कंप्लीट करता है तो हायर एजुकेशन के तरफ वो जा सकता है, या फिर उसे कोई जॉब में इंटरेस्ट अगर है तो वो जॉब के लिए भी तैयार हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ बीएससी फिजिक्स। यानी बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग जो बताए रहे, उसमें बढ़ाई नहीं है, जो भी है रियल फैक्ट है। अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है तो उसमें इमेजिनेशन पावर ज़रूर रहेगा, हम उसे कितना यूटिलाइज करते हैं और कितना नहीं करते ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। चलिए ठीक है, हायर एजुकेशन आफ्टर बीएससी फिजिक्स, हम कौन से हायर एजुकेशन में जा सकते हैं? Students can pursue the higher studies from the top educational and the research institute in the India. Candidate can appear in the national level entrance test. Through this, they can be take admission in the top institute like IITs, IISc, IISER, TIFR, etc., etc. These are the some higher educations are which are also discussed in the details. आगे जितने सारे स्लाइड आने वाले हैं उसके अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें आपको और पता चलेगा कि जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे जरूरी फिजिक्स है। अब फिजिक्स में आफ्टर बीएससी के बाद हम लोग कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं? अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे टॉप वाला जो है तो दैट इज आईआईटी जाम। इट इज द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आईआईएससी और IITs. Maybe one of them will be on the rotation basis. They will be conducting the examination for the admission of MSc degree courses. While they are integrated courses, they are dual degree courses or the PhD or integrated PhD courses. Then next is JEST, that is Joint Entrance Screening Test Examination, that is conducted by SERB Board, Science and Engineering Research Board, for the admission in the integrated and the PhD courses in the institute that accept the JET score. Next is the TIFR GS, Tata Institute of Fundamental Research, enrolls the admission for the postgraduate courses at the national level entrance test. That is for the graduate schooling entrance test. All these entrance tests are available on the web. These are the very prestigious entrance tests, and they are having the very brighter and brighter job opportunity.
सो व्हाट इज द जॉब रोल फॉर द बीएससी प्लेन ग्रेजुएट्स? अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन बीएससी में किया है तो आपको कहाँ जॉब मिल सकते हैं? थोड़ा सा हमने उसमें सर्वे किया था, तो जॉब सर्वे है सबसे पहला फिजिसिस्ट। आप एक अच्छी तरह फिजिसिस्ट बन सकते हैं। इट इज रिसर्च असिस्टेंट करके आप काम कर सकते हैं। टेक्नीशियन है जैसे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंडिडेट ने हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। सेकंड है फिजिक्स लेक्चरर, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। उसके डिटेल हम लोग और डिटेल बात करेंगे थोड़ी देर में, और है उसके आगे। लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट करके आप लोग काम कर सकते हैं ओनली इफ़ यू आर बीएससी फिजिक्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई सब्जेक्ट मैटर है आपका, उसमें भी आप लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं। रिसर्चर, आप बीएससी फिजिक्स है तो आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीएआरसी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, एनटीपीसी, भेल, etc., where we can also do the researcher job. Even in the private organization, BSc Physics degrees are required for the technical support, for the technical jobs. Then again, one important is the radiologist assistant. There are so many job opportunities are available in the radiologist assistant, because when you are complete your the post graduation undergraduate in the BSc Physics, then there are some radiology courses are available. We can also admit that courses, then you can also easily get the job radiologist assistant. Next is academic counselor and advisor. You can also an academic counselor. BSc Physics graduates can join the school and academic institute, college as an academic counselor and advisors. Such candidates can assist students with their Now, what are the career options after BSc Physics? Many candidates are saying for their career after the graduation. There is one question is always there. What should we choose after the BSc Physics? Further study or job? सभी लोगों को वही क्वेश्चन पड़ता है कि हम लोग बीएससी फिजिक्स करने के बाद जॉब करना चाहिए या फिर स्टडी करना चाहिए। सभी लोगों को सेम क्वेश्चन पड़ता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर द बीएससी कोर्स इन फिजिक्स, there are the many career opportunities open for you, such as research analyst, teacher, lab assistant, and etc. So many things are available. But you think that if you go with the further study such as MSc degree, MSc PhD dual degree, or joint MSc PhD course, then you can become a scientist, and you have the more number of job opportunities. One thing important things, BSc Physics करके ही आप लोगों को जॉब मिलेगा, no doubt you will get the job. But after BSc अगर आप लोगों ने MSc किया और PhD किया तो आपको ज़्यादा जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। आपको करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, इसके अंदर आप लोग आराम से ज़्यादा जॉब मिला सकते हैं। Next, career options after a BSc Physics, study for MSc. This is one common career option. Did you ever think why most of the science students choose MSc courses after graduation? There are the four top reasons. जहाँ चार प्रमुख उसके रीजन है। सबसे पहला, you will find the many career opportunities in the private as well as in the public sector when we complete the post graduation. Second, you can apply for the many government jobs in which the MSc courses are required
as a eligibility criteria. You can find the more number of jobs are available in the ISRO and DRDO, VSSC, SSPL and the other research centers. You can get high paid job within the finest and the reputed professionals. मतलब बीएससी फिजिक्स करने के बाद आप लोगों को एमएससी के अलावा जैसे एडमिशन करते हैं और एमएससी करने के बाद ही आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि बीएससी फिजिक्स करने के बाद आपको ऑप्शंस कम रहते हैं, लेकिन एमएससी फिजिक्स के बाद ऑप्शंस आपको बहुत सारे बढ़ जाते हैं। और क्यों बढ़ते हैं ये अभी 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया। और टॉप लेवल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, टॉप लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैविंग द हायर प्रोस्पेक्टस, हैविंग हायर जॉब अपॉर्चुनिटी, हैविंग द हायर सैलरी, for MSc and the PhD courses. I have listed some name of the universities they have conducted their entrance examination for the admission of MSc and the PhD programs when we complete the postgraduate courses, when we complete the undergraduate courses. जैसे आप लोग अंडरग्रेजुएट कोर्सेज कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में फिर MSc और PhD के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जनरली सभी लोग वही सोचते हैं कि हम लोग एडमिशन्स कहाँ लें, तो टॉप मोस्ट जो है उसके बारे में हम लोग सबसे पहला सोचते हैं। जैसे टॉप मोस्ट में सबसे पहला नाम आता है IITs का, जहाँ आपको एमएससी फिजिक्स के लिए जॉइंट एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो जाती है, जो कि साल में रोटेशंस बाय रोटेशंस IISc बेंगलोर एंड द IIT दे विल बी कंडक्ट देयर एग्जामिनेशंस फॉर द जॉइंट एडमिशन टेस्ट for admission in the MSc Physics or for the joint admission in the MSc Physics, for the dual degree in MSc Physics, for the MSc in Applied Geophysics, for the MSc in Astronomy, for MSc PhD in the Environmental Science and Engineering, for MSc in Tech in Applied Geophysics, MSc in the Atmosphere and the Ocean Sciences. So many subjects are there. We'll discuss that subjects. This is the topmost admission for the MSc and the PhD, that is in the IIT, in particularly in India. Then next comes TIFR, Tata Institute of Fundamental Research Graduate School. They also conduct the examinations for the integrated MSc PhD courses. Then ICAR, Indian Institute of Science Education and Research. In our Maharashtra, ICAR is at Pune. So ICAR is also conducting the BS and MS in physics. After 12, they are starting their degree, that is BS and MS, their integrated PhD program also. In place of that BSc, they have BS, and in place of MSc, they have MS in ICAR. Integrated PhD program, they also run the integrated program. PhD program in the physical sciences, they are specific. When we contact supervisors at that ICAR, you can also get that. You can also admission in the ICAR. The next one is Orissa University of Agriculture and Technology. They are also conducting some entrance examination. Then NEST, National Entrance Screening Test, integrated MSc program in the basic sciences, physics, chemistry, biology and the mathematics. JEF, Joint Entrance Screening Test, that is PhD in the physics program. Then MSc and the PhD entrance test, that is Maharashtra Council of Agriculture, Education and the Research, Pune. They are also conducting the examination. Pantnagar University entrance examination. Then Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, and so many things. Rajasthan, IGKV CET. Doing the MSc from reputed college like IIT or IISc, or from the above listed colleges or above listed from the university, you can enhance your the knowledge and the research skill. जितने बड़े यूनिवर्सिटी से या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने MSc और PhD किया तो ज़रूरी है आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका रिसर्च स्किल बढ़ेगा, तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आप लोगों को जॉब
का अपॉर्चुनिटी जो है, जिसमें सैलरी का पैकेज जो है वो आपको सबसे हाईएस्ट बनेगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आफ्टर बीएससी इन फिजिक्स। अगर बीएससी फिजिक्स आप लोग जैसे कंप्लीट करते हैं, व्हेन यू कंप्लीट द बीएससी फिजिक्स, देयर आर द मेनी कोर्सेस टू गेट अहेड इन योर फील्ड। सम ऑफ द कोर्सेस आर देयर। मतलब आप एमएससी फिजिक्स करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे एमएससी फिजिक्स में कौन से स्पेशलाइजेशन हम ले सकते हैं, जैसे एकॉस्टिक फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, फाइबर ऑप्टिकल फिजिक्स है, फ्लूइड फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है, मटेरियल फिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। इतने सारे हम लोग उसमें से सभी तो नहीं, लेकिन एक कोर्स में आप लोग एडमिशन जरूर ले सकते हैं। फिजिक्स में इतने सारे स्कोप्स हमें अवेलेबल है कि जिसके अंदर हम लोग एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं। दैट स्पेशलाइजेशन इज पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन लेते हैं, वहाँ स्पेसिफिकेशन है, उसी के ऊपर ये आपका स्पेशलाइजेशन आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा हम लोग ले सकते हैं। देन करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी फिजिक्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स। बीएससी फिजिक्स जैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमें जॉब मिल सकते हैं। तो कौन से जॉब मिलेंगे ये हम लोग देखेंगे अभी। जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हेन वी कंप्लीट द अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स। सबसे पहला वाला जो सेक्टर ओपन होता है गवर्नमेंट में, वो रिसर्च और द साइंटिस्ट। जॉब इन द गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाम दिए है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क बॉम्बे, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी. So all these are the government organizations where you will get the research position after graduation in physics, or you may also recruit as a scientist assistant, not as a scientist, but as a scientist assistant under the scientist. Second is the officer job in the other government sectors like Railway Officer, State Bank of India, Staff Selection Commission, banking sectors, UPSC and other government sectors. And they become the lecturer after completing your PhD in physics. Many university hires the assistant professor based on their skill and their academic background. प्राइवेट कोचिंग क्लासेस आप लोग एज ए लेक्चरर करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली बेसिस ऑफ योर under graduation, not post graduation. But for the assistant professor you require the net set and the PhD, public PhD. So you can also recruit as the assistant professor in the college also. And then there is a lots of career opportunity developed by the Union Public Service Commission. Lots of jobs are available when we crack the under UPSC examination, or maybe the state government, that is a MPSC examination. So there are lots of jobs are available, not particularly for the BSc Physics. All the undergraduate courses they are available, but particularly my today's topic was mainly focus on the BSc Physics, so I have not covered that parts. Next, career options after BSc Physics in the private sectors. What are the career options? Particularly in the private sector सबसे पहला नाम आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. जो भी कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो उसी कॉलेज में जो भी प्राइवेट कंपनीज आते हैं उसी के ऊपर हमारा ये करियर ऑप्शन डिपेंड होगा. अगर आपके महाविद्यालय में अगर प्राइवेट कंपनीज आते हैं, अगर वो रिक्रूट करते हैं, अगर वो
कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव लेते हैं तो ज़रूर आपको उसका बेनिफिट होगा। जैसे पर्टिकुलरली यहाँ नाम लिखे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनालॉग डिवाइसेस दैट इज़ अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी, GE डिजिटल, एटॉमिक लैब्स, टेस्ला, दिस इज ऑल्सो द अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्लीन एनर्जी कंपनी, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, and then National Aeronautics and the Space Administration, NASA. So there are the number of private sectors jobs when we complete the BSc Physics, but that companies should be are available, that companies are supposed to be in your campus or not. So if they are not at the campus, then you can also directly approach to that company. You can write your resumes. आप आपका CV जो है, आपका एक्सपर्टाइज जो है उस कंपनी को लिखिए और उसके HR से कंसल्ट कीजिए और आपके कंपनी का कहाँ इंटरव्यू है और कहाँ आपको इंटरव्यू के हम लोग अपीयर हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन उसी HR से आप लोग कंसल्ट करें और उसी के बाद आप उसका टाइमिंग, उसका वेन्यू लेके आप लोग उस कंपनी के इंटरव्यू पर जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आपके पास आप स्किल है तो आप लोग ज़रूर प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। देन लिस्ट ऑफ ऑल MSc कोर्सेज ऑफर्ड इन द इंडिया पर्टिकुलरली, अगर हम लोग ढूंढते हैं तो ये कितने MSc कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, तो देखे जाए तो मोर देन 300 MSc कोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया। 300 से ज़्यादा MSc के कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है। और जैसे आप लोगों का जो इंटरेस्ट है उसी से हम लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में है, आपका इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स साइंस में है, तो आप लोग ट्रैवल्स में है या फिर जो भी आपका फील्ड है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं MSc के लिए। सो इंटीग्रेटेड MSc एंड द MSc टेक कोर्सेस। MSc कोर्सेस का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया है। पर्टिकुलरली ये जो कोर्सेस है हमारे इधर, एक जो कोर्स है हमारा MSc कोर्स, जनरली हमारे जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ है एक्सेप्ट दी IITs एंड IIScs और DIFR, दे आर हैविंग द डिफरेंट कोर्सेज, बट इन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ वी हैव MSc कोर्स 2 ईयर ड्यूरेशन। हम लोग 2 साल का MSc कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में MSc टेक कोर्स दैट इज़ ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। अगर हमने इंटीग्रेटेड MSc कोर्स लिया तो दैट इज़ ऑफ 5 ईयर कोर्सेस। सो MSc टेक एंड इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेस आर जनरली रन बाय द IITs एंड IIScs और टॉप लेवल इंस्टीट्यूट। आवर यूनिवर्सिटी रन्स MSc कोर्सेस इन 2 ईयर ड्यूरेशन। सो एडवांटेज ऑफ परसुइंग द MSc कोर्सेस, जैसे आपने MSc कंप्लीट किया तो आप में क्या एडवांटेज है, आप में क्या क्वालिटीज़ डेवलप होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि इट प्रोवाइड द डीप नॉलेज ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट्स का डीप नॉलेज हो जाता है, ऐसा मान के चलिए कि हो ही जाता है। यू वुड हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्पेसिफिक फील्ड। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नॉलेज तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बढ़ ही जाता है, तो मतलब अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर नॉलेज अगर आपका बढ़ जाता है तो ज़रूरी है कि आप ज़रूरी है कि आपका नॉलेज ज़्यादा हो और उसी से आपको बेनिफिट ऐसा हो कि आप जितने जल्दी हो सके नेट का एग्ज़ामिनेशन हो या सेट का एग्ज़ामिनेशन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हो। You will paid for higher than the candidate, मतलब आप लोग को ज़्यादा सैलरी मिलती है अगर आप कंपेयर करते हैं
ग्रेजुएशन स्टूडेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब 3 चीज़ें जो है, अगर आपने एमएससी करने के बाद है, आपको पता चलेगा कि हम 3 चीज़ों में उनसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। जैसे नॉलेज बढ़ता है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, और आपको सैलरी भी उनसे ज़्यादा मिलती है। सो करियर ऑप्शन आफ्टर एमएससी कोर्सेस, क्या क्या करियर ऑप्शन है जैसे आप लोग एरिया से जैसे देखा जाए तो देर आर दी वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएससी कोर्सेज। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हम लोग जनरली एक चीज़ हम लोग अक्सर करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं एमएससी करने के बाद सबसे पहला करियर ऑप्शन वो करते हैं। अगर उनको पढ़ना है आगे तो सबसे पहला ऑप्शन वही होता है उनका कि वो पीएचडी के लिए आगे जाते हैं, मतलब फॉर दे आर गोइंग फॉर द एडमिशन इन द पीएचडी for the career in the research and the development sectors. Or you can also nowadays there is a NET is optional, particularly PhD is optional for the NET examination, so then they are also doing for the PhD. So what are the career options after MSc in the private sectors? There are the many private companies. They are require the highly talented and the skilled graduates, postgraduate students. So they have, if they have the innovative ideas, can be help to the companies enhance their product and then creativity. So there are so many companies are in the markets. They are demanding the talents. They are demanding the skills persons. Some name I have listed, that is Cipla, Asian Paints, ONGC, ISO, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, including some German and Japanese companies, Goldsman, Walmart, then Amazon. So many companies are there. There are lots of companies are available in the market. So you can directly approach that company. So other than this above career opportunities, after MSc, after post graduation, you have the plenty of options in the government sectors also. Number of plenty of the options, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अगर आप लोग एमएससी कंप्लीट करते हैं तो जो ऑप्शंस हमें मालूम नहीं, वो भी पूरे ऑप्शंस वहाँ पे मालूम है, मतलब हम लोग उसमें जॉब मिला सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में एमएससी कंप्लीट करने के बाद, जैसे इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, जैसे एमएससी कंप्लीट करने के बाद रिसर्च और साइंटिस्ट कि जॉब आप लोगों को, जो मैंने नाम इसके पहले भी लिए थे, DRDO है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है, न्यूक्लियर साइंस सेंटर न्यू दिल्ली है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता वाली है, बार्क है, इसरो है, बहुत सारे जगह है कि जहां हम लोगों को एमएससी कंप्लीट करने के बाद एज ए साइंटिस्ट करके आप लोगों को जो DRDO की सेट की एग्जामिनेशन होती है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ज़रूर आपको उसके अंदर जॉब मिलता है। और जब तक आप लोगों का, जब भी कोई इंडस्ट्री होती है, जब भी कोई लैब होती है, रिसर्च लैब, उस रिसर्च लैब में आपका, अगर रिसर्च लैब में अगर आपका जो रिसर्च टॉपिक है, अगर आपका रिसर्च टॉपिक का अगर एरिया, अगर आपका कहीं रिसर्च सुपरवाइज़र से अगर आप मिल लिए, अगर उनसे आपका कंसल्ट हुआ, अगर कोलैबोरेशन होता है, तो ज़रूर आपको उसका बेनिफिट होगा, आपको रिसर्च के लिए वो ज्वाइन करेगा फॉर PhD. सो दिस इज द फर्स्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स. Then second है officers. You can also join as an officer in the government prestigious companies like ONGC, BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited, NTPC, National Thermal Power Corporation, Indian Oil Corporation Limited, IOCL, Bharat Petroleum. So many companies are, government companies are there. They are also offer the job for you. देन थर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मैंने इसके पहले भी बताया था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब एमएससी कंप्लीट करने के बाद, अगर आप लोगों ने नेट सेट एग्जामिनेशन हो या नेट की एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट लेवल के सेट एग्जामिनेशन अगर है आपका, तो आप इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एनी कॉलेज और इन द एनी यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन योर द स्किल एंड द एकेडमिक बैकग्राउंड, हैविंग द हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑल्सो. Then next is the railway officer. There are the various posts for the MSc qualified in the Indian Railway.
They can work on the following positions: project associate, trainee officers, deputy country representative, associate software engineers, associate analyst, honoring visiting specialist, research associate, junior research fellow, and the last one is the list of other organizations. जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ है, उसी मिनिस्ट्रीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो भी बैंक्स है, उसमें बहुत सारे जॉब्स के ऊपर एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। और इसकी सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक न्यूज़पेपर आता है जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसे आप अगर सर्च करते हैं, हमेशा देखते जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। रोजगार समाचार जो हिंदी में 3 लैंग्वेज में प्रकाशित होता है, अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है और उर्दू में भी होता है, जैसे 3 लैंग्वेज में वो पब्लिश होता है। करियर स्कोप आफ्टर एमएससी। अब जैसे देखा जाए तो एमएससी कंप्लीट करने के बाद जो करियर स्कोप बन जाता है, वो हमें अगर किसी को और पढ़ना है आगे तो हम लोग पीएचडी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पीएचडी के लिए ज्वाइन करना है तो हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोग कोई किसी के साथ कोलैबोरेशन है, किसी के साथ अगर आपका टॉपिक बनता है, जो भी रिसर्च, जैसे एमएससी में जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है और जो भी आपके एमएससी प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र होते हैं या फिर जो भी गाइड होते हैं, उनसे अगर आप कंसल्ट करते हैं तो अगर उनका अगर कोलैबोरेशन कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ अगर है तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल, दे आर आल्सो फाइंडिंग द स्टूडेंट्स फॉर डूइंग द पीएचडी। मतलब वो लोग फॉरेन के स्टूडेंट्स, फॉरेन के साथ हम कोलैबोरेशन करके या फॉरेन में हम जाके फॉरेन यूनिवर्सिटी से हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट ये है कि आपको अच्छा स्टाइपेंड, काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड फॉरेन में आपको मिल जाता है अगर आपको पीएचडी करना है तो। इवन नॉट इन फॉरेन, मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स द पीएचडी प्रोग्राम्स, मंथली फाइनेंशियल अवेलेबल आर also available. If you qualify the NET set examination for the fellowship, then you will also get the stipend for the pursuing PhD. PhD करने के लिए आपको नेट सेट अगर आप लोग पास कर लिया, अगर फेलोशिप के लिए अगर आपने पास किया है तो आपको इसमें भी काफ़ी अच्छा यूजीसी की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, जो 31,000 रुपीज़ पर मंथ अभी फ़िलहाल देते हैं। साथ में HRA भी होता है, बेसिक पे 31,000 और HRA मिला के आप लोगों को 20% HRA या 15 या 16% HRA डिपेंड अपॉन द सिटी, 40,000 के पास आप लोगों को पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। दैट इज ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूजीसी। कई जगह वो 5 ईयर के लिए भी अवेलेबल है स्टाइपेंड जो होता है पीएचडी करने के लिए। और आप लोग वैसे भी पीएचडी कर सकते हैं विदाउट स्टाइपेंड। अगर आपको स्टाइपेंड नहीं लेना है तो आप वैसे भी पीएचडी कर सकते हैं विदाउट स्टाइपेंड, लेकिन स्टाइपेंड लेके पीएचडी करना और ज़्यादा अच्छा है। करियर स्कोप आफ्टर पीएचडी, जैसे पीएचडी करने के बाद आपको क्या करियर स्कोप होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली बात कि जैसे आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आपके रिज्यूम में एक प्रेस्टीज और एक रिस्पेक्ट बन जाता है सोसाइटी में कि आपने पीएचडी किया है। जैसे आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल होते हैं, जैसे जो एमएससी के बेसिस के ऊपर है वही आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, लेकिन थोड़ा सा हायर पोजीशन पे आप जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टर, डीन्स, इसी पोस्ट के ऊपर आप लोग जा सकते हैं अगर आप लोग का पीएचडी कंप्लीट किया है, आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस हो या रिसर्च एक्सपीरियंस हो, उसके बाद में फिर आपको उसके अंदर यूनिवर्सिटी में जॉब मिल सकते हैं। यू कैन बिकम एन ए करियर एज ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी आप हो सकते हैं। यू कैन एनालाइज द डाटा फ्रॉम क्लाइंट कंपनीज एंड गिव द एक्सपर्ट ओपिनियन टू द इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंपनीज, कैन डन बाय द पीएचडी होल्ड मच इफेक्टिवली। पीएचडी अगर आप कंप्लीट करे हैं तो आप डाटा को एनालाइज अच्छी तरह कर सकते हैं
मतलब पीएचडी करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन सकते हैं आप लोग, पर्टिकुलरली एरियाज की। और सबसे लास्ट में जो आप एक अच्छी तरह राइटर, साइंटिफिक राइटिंग आप, और यू कैन पब्लिश योर जर्नल ऑल्सो, जर्नल भी आप लोग आपका खुद का निकाल सकते हैं। मतलब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ पीएचडी करने के बाद आप लोगों को अवेलेबल है। अब सबसे लास्ट में आई express my best wishes and the high bright future to all my dear students, and thanks to organizers for organizing such webinars on the career opportunity in the physical and mathematical sciences, particularly for the UG and PG students. Thank you very much.